डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है मैम। The fundamental unit of life. In this video, we will discuss about the fundamental unit of life. Do you know what is the fundamental unit of life? Cell. Cell is called as fundamental unit of life. Do you know who discovered the cell? It's Robert Hooke. In 1665, Robert Hooke observed a thin slice of cork under his own microscope. He found small box-like structures. They were like small rooms of a honeycomb. Robert Hooke called these boxes as cells. The meaning of word cell is small room. Cells are the building blocks of living things. All living things are made up of cells. Certain organisms are made up of only one cell. Such organisms are called unicellular organisms. Uni means single. Examples of unicellular organism is amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, and bacteria. Some organisms are made up of many cells. Such organisms are called multicellular organisms. All multicellular organisms are developed from a single cell. Cells produce cells of their own kind by cell division. All cells come from the pre-existing cells. Do you think the whole multicellular organism is made up of single type of cells? No. Multicellular organisms are made up of different types of cells. Now, let us see different types of cells of our body. Muscle cells, blood cells, nerve cells, bone cell, ovum, sperm cell, fat cell. Why these cells are in different sizes and shapes? The shape and size of these cells depends on the function they perform. You know that in our body we have different systems to perform different tasks. For example, heart pumps blood. Liver secretes digestive juices. Kidneys filter the blood. Brain controls the body. This means that in our body, different jobs are done by different parts. We call this as division. Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my sentences just sound confusing. Division of labor. In this way, we will see division of labor inside a cell also. Cell is very small. Still it has so many parts in it. The parts present in the cell are called as. देखिए सेल कैसा होता है बेटा, बहुत छोटा सा होता है सेल, है ना? उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सेंट्रोइड होगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, ये आपके बुक्स में भी दिया होगा बेटा। हाँ मैम।
ठीक है, तो बफरिंग होने देते हैं, तब तक हम लोग आते हैं हमारे बुक। आज बाया पढ़ेंगे क्या? हाँ बेटा, कल मैडम क्या पढ़ाइए? मामा, हम्म। मैम अभी लेसन 6 पढ़ा रही थी शिव। ठीक है ना, तो आप पढ़ो मैडम के साथ भी और मेरे साथ भी पढ़ो, ठीक है? चलिए रीड करते हैं बेटा, बुक अपन लोग। ठीक ठीक है। है, अच्छा, अपना बुक निकाल लो। हाँ आ रहा हूँ। बुक्स निकालिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 रीडिंग करना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाओगे? पढ़ा लूंगा ना बेटा, आप टेंशन मत लीजिए ना। While ठीक है। examine a thin slice मामा of मेरा ये 27 से एग्जाम है। 27 अभी। नहीं, हाँ जुलाई। तो क्या क्या चैप्टर आ रहा है आपका? एक एक चैप्टर आ रहा होगा ना? हाँ, एक चैप्टर फिजिक्स, एक लेसन चैप्टर। 1। हाँ, तो आप क्या कीजिए, सबका रिवीजन अब स्टार्ट हाँ करेंगे। वैसे आ रहा है। सबका जैसे बायो में रिवीजन करा दो, मैडम को भी बोलना बायो फिर से रिवीजन कराएगी, ठीक है? फिजिक्स का भी चैप्टर 1 रिवीजन होगा, चैप्टर 2 रिवीजन होगा, ठीक ठीक है? है। ठीक। ठीक है। तो आज मैं ये करा रहा हूँ, बाकी ना आपको रिवीजन करना है हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा। अभी नया नहीं पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है? मैथ्स में कितना चैप्टर आ रहा है? ठीक है। मैथ्स में 3 चैप्टर आ रहे हैं, अभी सर कहाँ पर है? 1 to 12। अभी सेकेंड चैप्टर में है। अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा। थर्ड चैप्टर क्या है मैथ्स का? थर्ड चैप्टर 1 to 12। ठीक है, ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ आज, ठीक है? मैथ्स के लिए कैसे करेंगे, वो नहीं होगा तो बताएंगे मेरे को। चलो ठीक है। स्टडी स्टार्ट करो। हाँ, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. ठीक है, तो ये ना Cell is a Latin word for a little room. आपको पहला क्वेश्चन आता है बेटा, सेल को डिस्कवर किसने किया है? तो इसका आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। सेल को डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट हुक। Robert Hooke ने। हाँ, हु डिस्कवर्ड द सेल करके आया, तो क्या लिखेंगे उसका आंसर हम लोग? रॉबर्ट हुक। देन Robert Hooke। ठीक है, चलिए हाँ। नेक्स्ट पढ़िए। Cell is a Latin word for a little room. This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these
Describe this unit is being used till this day in biology. Let us find out about cells. ठीक है, अब क्या हुआ, सेल का खोज हो गया था, तो सेल का डिस्कवर किसने किया, यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ में कि सेल का डिस्कवर किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। और जब सेल का डिस्कवर होता है तो साइंस में क्या आ जाता है, हुक बायोलॉजी ने, में एक हाँ। रिवॉल्यूशन आ जाता है, क्योंकि अब सेल आया, सबसे बॉडी का, हर बॉडी का, लिविंग एंटिटी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल। क्या होता है, सेल, ठीक है। Cell. सेल Cell. मतलब क्या होता है, एक छोटा सा रूम, मतलब हाँ। एक शरीर का छोटा सा पार्ट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़िए। 5.1 What are living organisms made of? Activity 5.1 Let us take a small piece from an onion bulb with the help of a pair of forceps. We can peel off the skin called epidermis. ठीक है, पढ़िए, पढ़ो। From the concave side, inner layer of glass containing this will prevent the peel from getting folded or getting dry. क्या करने बोल रहा है, आप एक प्याज लीजिए और उसको Okay. क्या कीजिए, छीलिए करके बोल रहा है ना, तो छीले। What do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop of the peel from the small glass to the slide. Make sure it's perfect. Paintbrush might be necessary to help. अरे बच्चों, हाँ। आज हम आइए, बोलिए, 9th देखिए क्लास के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की वाह। मौलिक इकाई कोशिका के अंतर्गत जो हमारी एक्टिविटी 5.1 है किताब के अंदर, उसमें प्याज की झिल्ली की स्लाइड बना करके देखेंगे। तो जैसा थोड़ा कि अटक रहा है। हम किताब में देख रहे हैं कि हमें प्याज की झिल्ली कैसे निकालनी है और किस तरीके से उनको स्टेप बाय स्टेप करके स्लाइड। फिर से स्टार्ट कर देते हैं आपको एक्टिविटी। वही बता रहे। आज I think हम आप चालू हो 9th जाओ। क्लास के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के अंतर्गत जो हमारी एक्टिविटी हाँ। 5.1 है किताब के अंदर, उसमें प्याज की झिल्ली की स्लाइड मामा बना मैं करके प्रश्न करूँ क्या? देखेंगे। आपका स्क्रीन तो बहुत जैसा कि हम किताब में देख रहे हैं कि हमें प्याज क्या हो की रहा है स्क्रीन बेटा? स्क्रीन क्या हो रहा है बेटा? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हिंदी में लिखा है, हाँ, हिंदी में बता रहा है वो। दिखा रहा है पर ब्रेक हो गया। अच्छा, नहीं, अच्छा, मैं मतलब दिखा वो रहा हूँ। बुक भी हिंदी में होता है क्या? हाँ, बुक्स भी हिंदी में आता है, हम लोग पढ़े ना, आपकी मम्मी और मैं। अच्छा, आप झिल्ली लोग ये कैसे ऐसे ही बुक निकालनी में है पढ़े हो क्या और हिंदी? किस तरीके से उनको स्टेप बाय स्टेप करके स्लाइड बनानी है और माइक्रोस्कोप में देखने पर कि क्या हमें संरचना इस प्रकार दिखाई देगी। हम अब इस एक्टिविटी को करके देखते हैं। सबसे पहले हम प्याज से एक भाग काटकर निकाल लेते हैं। अब इस प्याज के कनके पार्ट में, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसको हल्का सा प्रेस करके अंदर की ओर और झिल्ली को तिरछा खींच करके इसकी एक झिल्ली, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, झिल्ली निकलना शुरू हो रही है। हमने क्या किया, एक झिल्ली निकाला। इस उसका झिल्ली प्याज को कैंची से काटकर अलग कर लेते हैं। तो कैंची से काटकर एक छोटा सा भाग लेकर हम पानी से भरे वॉश ग्लास में रखते हैं। पानी के वॉश ग्लास में रखने का कारण यही है कि झिल्ली तुरंत सूखे नहीं।
पानी में इसलिए डाल देते हैं ताकि वो झिल्ली सेल जो है गीला रहे। अब जो झिल्ली हमने पानी में डाली थी, उस झिल्ली के ऊपर सेफ्रेनिन की एक बूंद डालते हैं। मामा कुछ नहीं दे रहा है। सल्फर बंद करके ना सल्फर दरवाजा। ऐसा है उसके वजह से। सल्फर झिल्ली को कुछ देर स्टेन होने के बाद एक छोटे से भाग को उसको ना भिगा रहे हैं थोड़ा सा ब्लू साफ पानी में रखते हैं। अब झिल्ली को अच्छा सल्फर में साफ पानी में रखते हैं। और फिर उसको निकाल के साफ पानी में धो रहे हैं। अब पहले से साफ की गई एक स्लाइड पर इसको फैलाते हैं। और उसको ग्लास चिमटी छोटा सा है ना, स्लाइड बोलते हैं, उसमें उसको फैला दिए हैं। पिन के द्वारा, ब्रश के द्वारा या चिमटी हाँ, के हाँ। द्वारा। और इसके ऊपर मतलब, ये हाँ। ध्यान रखना है कि ये रोल नहीं हो जाए। अब इस पर फैलाने के बाद एक बूंद ग्लिसरीन की डालते हैं। ग्लिसरीन इस स्लाइड को सूखने नहीं देती है। ग्लिसरीन डाल दिए। क्या कर दिए हैं? ग्लिसरीन। अब इसके ऊपर ग्लिसरीन। एक कवर स्लिप चिमटी से पकड़कर बहुत सावधानी के साथ ये ध्यान रखना है कि कोई बबल ना बने। और एक्स्ट्रा अगर ग्लिसरीन बाहर आ गई है तो उसको टिश्यू पेपर से, ब्लॉटिंग पेपर से पोंछ लेते हैं, साफ कर लेते हैं। और हमारी स्लाइड तैयार है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। अब इसको माइक्रोस्कोप में ले जाकर देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या स्लाइड हाँ। किताब में बने चित्र के हिसाब से दिखाई दे रही थी। अब हम एक परमानेंट स्लाइड और देखते हैं प्लांट सेल की। हाँ तो अब आप एक परमानेंट पहले से तैयार स्लाइड को देख रहे हैं। अब हमने प्याज की झिल्ली की स्लाइड को बना करके देखा। इस पाठ की अन्य गतिविधियों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ठीक, समझ आया बेटा? समझ आया बेटा ये एक्टिविटी? हाँ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यही माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में क्या क्या पार्ट आया। होता है, पीस बेस होता है। और ये वाला डायग्राम हमने अच्छे से इसको देखा, स्लाइड को। ठीक है, तो हर चीज लाइफ जो रहता है दुनिया में, हर चीज जो लिविंग हाँ। एंटिटी है वो किससे बना रहता है? छोटे छोटे सेल से मिलके बना रहता है। जैसे हमारी बॉडी भी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। जो सेल के बीच बीच में डॉट डॉट दिख रहे सेल थे से बेटा, बनी हुई है। जो बीच में डॉट डॉट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए अब इसको जल्दी से रीड करो। न्यूक्लियस। यस, जल्दी से रीड करो। हाँ। Let us take a glass slide, put a drop of water on it, and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of saffronin solution on this piece, followed by a cover slip. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle. Ask your teacher for help. We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high powers of a compound microscope. ठीक है, ओके। क्या क्या बोल रहा है इसमें? इसमें एक ग्लास स्लाइड लेना है, एक प्याज लेना है, एक फोर्सेप्स लेना है, कॉन्वेक्स स्लाइड लेना है, सैफ्रानिन सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी लेना है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी लेना है। अब इसमें कुछ ना, इसको आप तो देख चुके हैं बेटा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इसके क्वेश्चंस के आंसर हम तो देखते हैं। ठीक है, आइए हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। क्या क्वेश्चंस इसने किए हैं? आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट
डू यू ऑब्जर्व, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। ये पहला क्वेश्चन है बेटा इसका, ये वाला पार्ट आपका पहला क्वेश्चन है, ये दिखा। हाँ इसका आंसर लिखेंगे बेटा, लिखते हैं इसका आंसर व्हाट वी ऑब्जर्व वाले में, ठीक है। मेनी क्लोजली प्लेस्ड वो क्या लिखे हैं एनी मेनली क्लोजली प्लेस्ड यूनिट यूनिट called cells are observed। बहुत सारे छोटे छोटे पास में जुड़े हुए जिसको यूनिट दिखे, जिसको सेल बोलते हैं, ये हमने देखा यहाँ पर, समझ आया ये। हाँ इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी एबल टू सी द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट। क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये बेटा, आते हैं नहीं ड्रॉ कैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ये तो डायग्राम बना हुआ ना। यस वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर that we see through the microscope। वो क्या है that structure that Yes, we can draw the structure that we see through the okay microscope on an ये observation sheet। हम उसको एक ऑब्जर्वेशन शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आप दूसरे एज पर फिगर 5.2 आप देख लीजिए, 5.2 में इसको ड्रॉ करके बनाया हुआ है बेटा, ठीक है। चाहे तो हम भी बना सकते हैं, ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको कैसे ड्रॉ करना है। क्या करना है इसको, एक पहले मैं भी ड्रॉ कर लूँ क्या? हाँ कर लो ड्रॉ, ऐसा बना लेते हैं ठीक है। अब इसमें क्या कर लो, सेल बनाना ना, मधुमक्खी का छत्ता रहता है ना, वैसे ही बनाना है इसको। मधुमक्खी का छत्ता रहता है ना बेटा, हनी बी का, हाँ बस वैसे ही बनाना है। भाई इस टाइप का बना देंगे, ठीक है। अब इसके बीच में क्या करो, हाँ। न्यूक्लियस डाल दो। इसके बीच में क्या आ गया आपका, न्यूक्लियस आ गया। बीच में क्या आ गया आपका, न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियस पार्ट हो गया, NUCLEUS न्यूक्लियस हो गया बेटा। एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या है, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल है। ये सपोज पहला सेल है, दूसरा सेल, ये तीसरा है, चौथा, छोटे छोटे से है, इस टाइप का आपका सेल रहता है। सेल आपका इस टाइप का रहेगा, ठीक है। और ठीक है। अंदर आपका ये यहाँ पर होगा आपका न्यूक्लियस, इस जगह पर होगा आपका न्यूक्लियस। समझ आया बेटा, ये देखो डायग्राम, हाँ अच्छा बना ना, लुकिंग वेरी गुड। कुछ पूछ रहे हैं। लुकिंग वेरी नाइस। यस कनेक्टेड करूँगा। प्लेन कर दिया आप? हाँ तो अभी आपको दिखेगा अच्छा ना, फोटो लेते बनेगा। हाँ
समझ आया सेल क्या होता है, कैसे देखते हैं, और इसकी खोज किसने की थी? हाँ डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने। हाँ। चले आगे। मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। हो गया मामा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए रीड करेंगे बेटा, रीड। Why we can try preparing temporary mounts of peels of onions of different sizes. ठीक है। What do we observe? आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वी कैन ट्राई टू प्रिपेयर टेम्परेरी अमाउंट ऑफ पील ऑफ ओनियन इन डिफरेंट साइज, छोटे छोटे या बड़े बड़े अलग अलग ले सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो कर सकते हैं बेटा, ऑल साइज ऑफ ओनियन पील, आप सब साइज के छोटे प्याज बड़े से सबको देख लो निकाल के उसका। ठीक है, आपको क्या दिखेगा, सबके अंदर क्या रहता है, सेल रहता है, सबके अंदर क्या रहता है, सेल होता है। ठीक है, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या आपको दिखेगा सेम स्ट्रक्चर की अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेगा? आपको लगभग सब में क्या दिखेगा, सेम स्ट्रक्चर ही दिखेगा, है ना। हाँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, अब इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए। Yep. इसका स्ट्रक्चर, what are these structures? बढ़िया। Huh. What are these structures? These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cell of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. ठीक, क्या बोलना चाह रहा है बेटा ये, द स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। अगर हम सारे ओनियन छोटे बड़े मोटे पतले सब इस ओनियन को देखेंगे तो सब में हमको क्या दिखेगा, सेम चीज़ दिखता है। ठीक है, ओनियन कवर। ठीक है, वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर, सब में एक ही टाइप का छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग कहाँ से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। द सेल ऑफ द ओनियन पील विल लुक एट द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम, वही जो चाहे छोटा काटो चाहे बड़ा काटो, सब में अंदर सेल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम दिखेगा बेटा अपने को। डन। Yep. चलिए नेक्स्ट। Yep. रीड। These small structures that we are the basic building units of life of the onion bulb. These structures are called cells. Not only onions, but all organisms that we observe around are made of cells. However, there are also single cells that live on their own. ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है बेटा, दिस स्मॉल स्ट्रक्चर, जो छोटे 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 स्ट्रक्चर दिख रहे थे हमने जिसको देखा है, इन्हीं छोटे छोटे स्ट्रक्चर से क्या बना होगा बेटा, ओनियन बना होगा, है ना, क्योंकि हर छोटे छोटे सेल से ही मिलकर ओनियन बनता है। हम लोग इंसान लोग भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द सेल, इसी छोटे से स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल। नॉट ओनली ओनियन, सिर्फ ओनली बात कर रहे प्याज की बात नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान है, चिड़िया है, ठीक है, ह्यूमन, सारे बॉडी हैं, ये सब के सब में क्या रहते हैं, आपके छोटे छोटे सेल से मिलकर बने रहते हैं, ठीक है। दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल, हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन, वो खुद अपने आप में सिंगल सेल में भी ये चीज अवेलेबल है। समझ आया? हाँ। चलो आगे पढ़ो। डू यू नो मोर नॉलेज? Do you know cells were discovered by Robert Hooke in 1665? He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, Leeuwenhoek. सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो, सेल वर्ड हाँ? डिस्कवर, इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको? नहीं, बस इतना 65 तक। Okay. Leeuwenhoek, 1674, with the improved microscope, discovered the free living cells in pond water for the first time. ओके, उसने क्या किया था, जो लिवॉन होक था ना, उन्होंने माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया था। कब किया था? 1674 में किया था। डन। माइक्रोस्कोप को किसने किया था इम्प्रूव? लिवॉन हुक ने किया था। किसने किया था? Leeuwenhoek ने किया था। ठीक, आगे पढ़ो बेटा। हाँ, it was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. करना है। रॉबर्ट ब्राउन जो था, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन। तो मामा सबका नाम सिमिलर है, जैसे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, वैसे इसको ना एक जगह भी लिखना है अपने को, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। क्या चीज? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है। इसने किसकी खोज डिस्कवर किया था? डिस्कवर क्या किया था इसने? सेल। किसका किया था? सेल। फिर उसके बाद लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज करेगा? न्यूक्लियस की खोज करेगा। किसकी खोज न्यूक्लियस करेगा? न्यूक्लियस की खोज किया। फिर लिवॉन हुक था, लिवियन हुक था, ठीक है। लिवियन हुक ये किसकी खोज करेगा? माइक्रोस्कोप की करेगा। किसकी करेगा? माइक्रोस्कोप की करेगा। समझ में आए? ये सब नाम इंपॉर्टेंट है अपने। ये माइक्रोस्कोप कैसे किया मामा? ये तो पॉन्ड वाटर में क्या था ना? हाँ तो वो नहीं तो उसको माइक्रोस्कोप से देखा ना बेटा उसने, खाली आंख से नहीं दिखता वो, माइक्रोस्कोप से देखना। वहां पर रखा हुआ था एपरेटस। अच्छा ठीक है। पुरकिंजे in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। इसका नाम क्या था? पुरकिंजी। क्या नाम है इसका? पुरकिंजी। पुरकिंजे, पुरकिंजे है ना, पुरकिंजे। इसने किसकी नाम खोज ही की? अजीब है। प्रोटोप्लाज्मा की, प्रोटोप्लाज्मा की। प्रोटोप्लाज्मा क्या डिस्कवर किया था? समझ आया ये? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट। Protoplasm for the fluid substance of the cell. The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Schleiden 1838 and Schwann 1839.
ठीक है। अब क्या हुआ था, दो साइंटिस्ट लोग मिले, उन्होंने क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया था, है ना, स्केंडन एंड स्ट्रक्चर ने। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन बाय द वर्क। ये सब का नाम अब इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए जितने नाम इम्पोर्टेंट थे वो हो चुके हैं हमारे। समझ आया बेटा यहाँ तक? हाँ। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस से पढ़ना स्टार्ट करो। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. सिंगल सेल वाला जो रहता है एलिमेंट, उसमें क्या आता है आपका, अमीबा आता है, ठीक है। और क्या आता है, अमीबा आता है, और पेरिमीशियम आता है, और क्लाइमाटोमोनास आता है, और बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है। चार चीज आते हैं, क्लैमोडोमोनियस, पैरामीशियम, अमीबा एंड बैक्टीरिया। ये चार क्या हो गए तुम्हारे पास, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गए। समझ आया? हाँ। ठीक है, 2 मिनट फोन उठाने दो। हाँ जय बोलिए। ठीक है ना, चलेगा। कितना टाइम है डाल दो ग्रुप में, ठीक है। ठीक। जय जयेश, हाँ। आपकी आज वाली क्लास मैथ्स वाली की ना कर लेंगे सर, कल सुबह लेंगे, ठीक है। क्यों? उनको सर कोई काम तो आप ले लो ना। हाँ मैं ले रहा हूँ, मैं तो अभी आधा घंटा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। आप ले लो ना। ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। क्या मैथ्स पढ़ाने हाँ। बोल रहे हो? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ मैथ्स पढ़ाने के लिए आप। अच्छा ठीक है, पढ़ा देते हैं। इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, फिर चलते हैं मैथ्स पढ़ने, ठीक है। कैमरा क्या बंद हो गया मेरा? ठीक है। This is beast. 2 मिनट बेटा, है ना। हाँ। लेना। वो ओपन बोर्ड गूगल से करना पड़ेगा क्या? क्या चीज को? आप जो किए हो ना अभी ओपन बोर्ड, दो मिनट बेटा, है ना। फोन, हाँ हाँ हाँ। क्या फोन ऑन आता है फिर ना पूरा सेटिंग डिस्टर्ब हो जाता है। चले चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ। चलिए बेटा, आ जाते हैं हम लोग हमारे पॉइंट में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल सेल के एग्जांपल। सिंगल सेल के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं जयेश? क्या क्या पता है अपने को सिंगल सेल का एग्जांपल? सेल का एग्जांपल है हाँ, अमीबा, 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 बैक्टीरिया, क्लैडोमोनास, पेरिमीशियम। उसको बोलते हैं कैलेमेडोमोनास, कैलेमेडोमोनास एंड पैरामीशियम एंड अमीबा, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हो गए। किसके हो गए? सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हो गए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, पढ़ते हैं इसमें, पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट। बेटा पढ़ो आगे को। देश, हाँ। read. These organisms are called unicellular organism. Uni is equal to single. On the other hand,
Many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in the multicellular organism. Multi is equal to many, such as some fungi, plants, and animals. Can we find out names of some more unicellular organisms? ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप के वो रहते हैं, सेल होते हैं। दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है सिंगल और एक होता है तुम्हारे पास मल्टी होता है। Multi. सिंगल और एक मल्टी होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसको और। Such as some fungi, plants, and animals. Can we find out names of some more intercellular ठीक है, हम लोग जो हमारे organisms? आसपास देखते हैं फंगाइज, प्लांट, एनिमल, क्या ये सिंगल सेल होंगे क्या? नहीं, अलग अलग सेल होते हैं बेटा, वो तो सिंगल कहाँ होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर? नहीं, हम लोग जो देखते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहता है एक छोटे छोटे सेल से ही मिलकर बनता है। कैसे? सेल डिवाइड होता है एंड प्रोड्यूस करता है एक नया टाइप के काइंड ऑफ सेल को। दिस ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अपने पेरेंट्स के हिसाब से ही वो आएगा। ठीक है, समझ आया बेटा ये? हाँ। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एक्टिविटी 5.2। एक्टिविटी 5.2 बस देखेंगे आज। ठीक है, उसके बाद इसको बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो एक्टिविटी 5.2 देख लेते हैं आइए। हाँ। आप वो पैड में लिखते हो क्या? हाँ, तब तो आप लोग को इतना साफ साफ दिखता है बेटा। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका की एक्टिविटी 5.2 को जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए, उसके लिए हमारे डाइसेक्टिंग बॉक्स का जो भी सामान है, निडल, कटर, ब्रश, चिमटी, कैंची, विभिन्न आकार की प्याज हो सकती हैं, प्याज से निकला हुआ मूलाग्र पार्ट या विभिन्न आकार की पत्तियां, क्योंकि इस गतिविधि के अंदर हमें कोशिकाओं के अलग अलग आकार को जांचने की कोशिश करनी है। ये दिखाना है कि क्या कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं। स्टेनिंग सॉल्यूशन जो भी हमें चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन, सेपरेशन, माइक्रोस्कोप। ग्लिसरीन। इसके अलावा हमारे पास हैंडी माइक्रोस्कोप हो सकते हैं, या जो लैब में पाए जाने वाला अथवा प्रयोगशाला में उपलब्ध जो माइक्रोस्कोप है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये माइक्रोस्कोप है बेटा, ये इससे देखते हैं हम लोग। ठीक है जयेश, ये माइक्रोस्कोप हाँ। है, इससे देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या? ये हाँ, यही? यस। माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल जो ज्ञान है आपको, इसके विभिन्न भागों की जानकारी मैं क्रियाकलाप एक्टिविटी 5.5 में भी दूंगा। तो जैसा कि आप एनसीईआरटी की किताब को देख रहे हैं, हमें जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए या जो चरण हमने स्टेप्स एक्टिविटी 5.1 में स्लाइड बनाने के लिए प्रयोग किए थे, उसी प्रकार प्याज की सल की झिल्ली को निकालना है कनके पार्ट से, पानी से भरे वाच ग्लास में डालना है, फिर उसको स्टेन करना है सेफ्रेन के द्वारा, और पानी से धोकर वॉच ग्लास पर रखना है और सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप से देखना है। या अन्य भागों की जो भी स्लाइड बना रहे हैं, इसी चरण से हम 5.1 की जो चरण थे उसी तरीके से माइक्रोस्कोप में देखें। तो जैसा कि हम प्याज की झिल्ली की स्लाइड को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, ये तो कोई तो हमें छोटे छोटे कोसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम पौधे के अन्य भाग की स्लाइड को देखते हैं।
ये पेड़ पौधे का तो छाल जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका आकार गोलाकार, अंडाकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, तो इस प्रकार कोशिकाएं अलग अलग आकार और आमाप की हो सकती है। तो इस गतिविधि की समरी को हम देखते हैं कि जो हमारी 5.2 एक्टिविटी थी, ये क्या कह रही थी कि क्या सभी ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको? हाँ समझ आया बेटा? आ गया। ठीक है, अब इसको लास्ट लाइन को जल्दी से हाँ पढ़ो। हाँ अब इसमें कुछ कंक्लूजन है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको देखते हैं फटाफट। क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, डू ऑल सेल लुक लाइक अ स्ट्रक्चर? क्या हमको जो सेल दिखेगा वो क्या स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पहला क्वेश्चन है। मामा, हाँ बेटा। ये डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज वाला नहीं नहीं लिखाओगे क्या? अच्छा, डू ऑल सेल लुक लाइक अ टर्म ऑफ शेप एंड साइज लिखाएंगे ना इसका आंसर? क्यों नहीं लिखाएंगे, बिल्कुल लिखाएंगे। यस यस, ऑल सेल्स लुक alike look alike मामा नया लिंक शेयर करना उसके बाद। in term of shape and size। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बेटा। हाँ सेकंड क्वेश्चन है, डू ऑल सेल लुक लाइक अ स्ट्रक्चर? ठीक है, अच्छा इसमें एक एरो गड़बड़ बन गया है, एरो हम सुधार देते हैं। एरो तो ये इसका हो गया, दिस आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डू ऑल में यस ऑल सेल्स लुक alike looks like in structure done। and हाँ थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट का क्वेश्चन है। सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? यस different part of a plant have different type of cell depending upon their function depending upon their function। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर डी का आ जाएगा। डी का क्वेश्चन का आंसर है ऑल प्लांट सेल हैव क्या क्या रहेगा उसमें? सेल वॉल रहेगा, सेल वॉल, हाँ सेल वॉल। दूसरा रहेगा उसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस एंड एटसेट्रा करके लिख दीजिए। ठीक है, इतने चीज़ तो कॉमन है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। ठीक है, ओके लिख लिया? हाँ ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं, मैथ्स चालू करते हैं। मामा नया लिंक भेजो ना। इसी में करेंगे ना, इसी में। इसमें आपका क्योंकि इसमें आपका स्क्रीन बहुत स्टक हो रहा है। तो मेरा नेट स्लो हो गया होगा ना बेटा? तो मेरा नेट स्लो नहीं है। नहीं तो मेरा नेट स्लो है तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं भी होस्ट तो रह सकता हूँ ना। नहीं तो ज्वाइन